So good morning to all of you. Today we are going to learn about basic things about Python. So in previous class we learned how to write program in Python. Okay. So in this class we are going to learn about Python programming language. 1 minute. Okay, tell me some question I will ask you. Who is the founder of Python? Comment in the chat box. Who is the founder of Python and in which year it was released? In which year it was released? Hello, am I audible? Uh, Guido van Ransom in 1991. Good. 1991, 1991, 1991. So we are going to learn about the Python programming language. Okay. Next, look, after the lecture we will learn about introduction to history of Python, okay, features and characteristic of Python, character set and of programming language, and token and its type, structure of Python program. So these things we are going to learn one by one. First, if we talk about what is the language, okay, so language is the way of communication between two person. If right now we are using a language हिंदी इंग्लिश, और इससे आपको हम अपना इंफॉर्मेशन आइडिया आपको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज यही है जो एक तरीका है जिससे हम अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। बट अगर हमें कंप्यूटर से कम करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी इंग्लिश, ओके, पंजाबी या कोई भी साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। अगर इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन इज ए हाई लेवल general purpose programming language that was created by Guido van Rossum. Okay, it development began in 90, look, 1989. Okay, and after 1 and 2 years, the first version was released, Python 1.0, in 1991. Okay, and it Python, and from Guido van Ransom, he was the person. He was inspired the Python name by one comedy show. That's name is Monty Python. Okay, the full name is that comedy show is Monty पाइथन सर्कस। ओके, एक कॉमेडी शो था ब्रिटिश का, ठीक है। वो उस समय 1998 के 1991 के आसपास वो कॉमेडी शो चलता था, ठीक है। उस समय ये जो पर्सन थे इनको बहुत अच्छा लगता था वो कॉमेडी शो, और वहीं से ये पाइथन नेम लिए। और और इसका अपना प्रोग्रामिंग जो भी वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, वो पाइथन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम ही वो क्या रख दिए, पाइथन रख दिए। कोई स्नेक से इंस्पायर नहीं हुआ। वो जो पर्सन थे कोई स्नेक से इंस्पायर नहीं हुए, वो नेम जो है स्नेक से इंस्पायर नहीं है, वो एक कॉमेडी शो का नेम है मोंटी पाइथन, वहीं से इंस्पायर होके ये पाइथन नेम लिया गया है। यहाँ तक डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट
Programming language. So programming language is the medium. 1 minute. Yeah. Programming language is a medium for us to communicate with a computer. ओके जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक क्या है, तरीका है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लुक, सेट अप इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा, जब हम डेटा को कलेक्शन करेंगे, डेटा को हम सीक्वेंस में लिखेंगे, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट अप इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और जब हम सेट अप इंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो हमें बनेगा प्रोग्राम। ओके, और व्हेन वी राइट द प्रोग्राम इन any specific language, that is called programming language, that is called programming language। got it? उसको हम प्रोग्रामिंग, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। यहाँ तक डाउट है? आप मैसेज भी कर सकते हो जो भी डाउट हो, ठीक है। नेक्स्ट we are, no sir, okay, stage to learn any language, there are many stages to learn, like if anyone want to learn English and Hindi, okay, and any specific language like any programming language, so there are some stage to learn any language. So for any language like our language, okay, our language like our language like English, Hindi, suppose if I talk about English, first you have to learn about letter, second, after collection of letter you have to make you can make the word, okay, after uh, after that you can create a write a sentence with the help of grammar rule, okay, and then you can write a paragraph on any topic. So similar, if you want to learn English language, okay, in the English language you can use A to Z as a letter, and okay, and then you can make word, and then you make the sentence, after that you can write the paragraph. Similarly, if you want to write programming language, first you have to know about character set. Character set is the very small element of any programming language. Like if you write A, okay, A, B in programming language, if you write A, B, all are the character set. Okay. Next, a collection of character set is called token in programming language. In English, in if you talk about English language, okay, collection of letter is called word. In same way, in programming language, collection of character set is called token. Got it? Next, instruction by syntax. Okay, in English we use grammar rule, and in programming language we use syntax rule. Okay, to write, to give any instruction in program. Got it? And after number of instruction is called program. Okay. So do you have any doubt? Got it or not? यहाँ तक डाउट है? ये समझ में आया इंग्लिश से, या कोई भी हमारा स्टेज क्या होता है कोई भी लैंग्वेज को समझने में, सीखने का? नो सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट व्हाट इज टोकन? टोकन क्या है? ओके, टोकन, ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज टोकन? The smallest individual unit of any program is called token. If you write in program int, okay, okay, int, int is a data type. We after sometimes we will going to learn about it. Okay, so if you write int in a program, that is called token. So token is the smallest,
okay, individual unit of any program. Okay, next, we cannot split token further, so token are the invisible, and every instruction of a program is collection of token. जितना भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो प्रोग्राम में उसको हम collection of token में ही लिखा जाता है. नेक्स्ट है, दिस इज द लाइक यहाँ पे आप सी लैंग्वेज में आप अगर यूज करोगे उसमें भी टोकन होता है, पाइथन में भी सीखोगे तो उसमें भी टोकन होता है. टोकन को फोर कैटेगराइज में आपको देख सकते हो. फर्स्ट इज द कीवर्ड. ओके, दीज आर द कीवर्ड. हम लोग कीवर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे. ओके, नेक्स्ट इंट, कार, इफ, वाइल आप यूज करोगे. ओके, पाइथन में ये सब कीवर्ड है. ठीक है, ये है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू ए होता है, इम्यूटेबल होता है, ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. लाइक अगर आप लिखते हो ए इजकल टू 5, ए इजकल टू 5 लिखते हो तो 5 इज द कांस्टेंट. ओके, इट कैन इट कैनॉट चेंज दर वैल्यू. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग आपको कल ही बताए थे, स्ट्रिंग डबल कोट कोमा में लिखा जाता है. और ठीक है, या सिंगुलर में भी लिख सकते हैं. सो अगर कुछ भी अगर डबल डॉटेड कोमा में लिख लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा. आइडेंटिफायर होते हैं, उसके बाद स्पेशल सिंबल यूज करते हैं लाइक स्क्वायर ब्रैकेट, parentheses वी कैन यूज. ओके, ऑल आर द टोकन. ऑपरेटर वी कैन use in the programming language to solve the any program. Okay, तो all are the token. गॉट इट, यहां तक डाउट है? किसी को कोई डाउट होगा तो आप ना बोलोगे, उनका माइक ऑन कर देंगे और आपने डाउट भी पूछ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कीवर्ड? स्पेशल प्री डिफाइंड वर्ड फिक्स्ड बाय लैंग्वेज इन्वेंटर. कुछ वर्ड होते हैं जो कंप्यूटर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाता था, बनाने के दौरान ही वो फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, उसको हम लोग उसी को कीवर्ड बोलते हैं. ठीक है, कीवर्ड एक क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो वाइल राइटिंग ए स्पेशल. अपने से उसको एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते हो. ठीक है, वो डिफाइन है लाइक इंट, ओके, फ्लॉट, डबल, ओके, एंड लीस्ट, ऑल आर द कीवर्ड. ओके, तो ये पहले से डिफाइन है बाय डेवलपर. Keyword cannot be used for their intended purpose, and keyword cannot be redefined by programmer. Programmer like we are programmer. अगर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम लोग प्रोग्रामर है, हम लोग डेवलपर नहीं है. कोई और डेवलप किया है प्रोग्राम को. ठीक है, बट वी अगर इस पे हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम लोग प्रोग्रामर है. प्रोग्रामर के द्वारा से हम रीडिफाइन नहीं कर सकते फिर से. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को डाउट है? ऑल कीवर्ड आर रिटन इन द लोअर केस. आपको ये याद रखना है, जितना भी आप लिखोगे कीवर्ड और लोअर केस में लिखना है. देयर आर टोटल एक्चुअल इन पाइथन देयर आर 35 कीवर्ड. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर इन पाइथन देयर आर 35 कीवर्ड in python, not c language. By default it is written python. In python there are, in c language there are 32 keyword, but in python there are, there are 35 keyword in python. Okay, keyword are sometimes also called reserved word. उसको sometimes keyword को हम reserved word के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, श्वेता यादव, डू यू हैव डाउट एनी? डू हैव एनी डाउट, श्वेता? श्वेता, डाउट है कि कुछ आपको?
नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ 35 कीवर्ड। ये देखो आपका लिस्ट है, 35 कीवर्ड है, लाइक वाइल, क्लास, ये सब जितना भी है, डी एफ डे फंक्शन डिफाइन करने के लिए, इंपोर्ट, रिटर्न, ओके, एल्स, कंटिन्यू, इफ, नॉट, ब्रेक, ओके, दीज आर द ऑल द कीवर्ड, ओके, that is predefined, okay, by developer. We programmer cannot used while writing a program. It programmer cannot redefine for a specific storing any value, okay. Identifier is a specific thing that is used to identify any value, like if you talk about int, okay, so it is the integer, okay. If you talk about float, float, so these things identify the value, this is called identifier, okay. So int is like integer is like positive number and negative number, but if float number is like a decimal number, okay. So this keyword, okay, int float is like a identifier that identify the value. Got it? अरे समझ में आए तो बोलो यस। नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल इज द सेम गिवन टू द एनी मेमोरी लोकेशन। आपको कल भी बताए थे, वेरिएबल इज ए लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर द एनी वैल्यू, ओके, विच कैन स्टोर एंड मैनेज वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ओके, जो वैल्यू स्टोर करता है। सपोज दिस इज द डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, ए इज द वेरिएबल और 5 इज द वैल्यू दैट, जो आपका ये 5 जो है क्या हो गया, ये ए में स्टोर हो गया, ठीक है। एंड फ्लोट इज द डेटा टाइप, बी इज द वैल्यू, सॉरी v is the variable, and 4.52 is the value that is stored in this variable. Got it? And char is also a variable, sorry, data type, but it is not used in Python, it is used in uh, C++, okay. But instead of car, in Python there is used string data type, okay. So I think you understand. Next, रितिका, रितिका सोनी, लेफ्ट कर दूंगा क्लास से। डेटा टाइप, what is the data type? Suppose if you talk about what is the data type refer to the classification of data, okay, value which tell the interpreter, compiler how the programmer aim to use their data. Suppose we have many data, like if you talk about 5, okay, 5 is also data, minus 10 is also data, okay, and 5.5, 5.5 is also data, okay, a is also data, okay, or unity, if you write the any word, it is also a data, okay, unity, okay, it is also a data. But all are the data, but there are different types. Suppose if you talk about 5 and minus 10, this is the integer type data, okay. If you talk about it is the integer int, okay, we are going to learn after this integer. And if you talk about 5.5, it is the float data. And if you talk about a and unity, these are the string data, okay. So there are data can be categorized on the base of that things, okay. This is called data type. नो सर, एक बार और बताइए, क्या बताना है?
चलो खुशबू को हम ऑन करते हैं। खुशबू कहाँ है जी? खुशबू एंड सुब्बू का जिसका आईडी है, ऑन म्यूट करेंगे और पूछेंगे डाउट। अनम्यूट योर सेल्फ। या यस सर। सर हाँ। डेटा टाइप एक बार और समझा दीजिए ना। ओके, डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब एक क्या होता है, हमारे पास बहुत तरह के डेटा होता है, और डेटा ऑन द बेस्ड ऑन द डेटा हमको उसको कैटेगराइज करना होता है। सपोज अगर हम अभी बताएं आपको, इंटीजर, इंटीजर का अगर बात करोगे, आप मैथ में पढ़ोगे, इंटीजर या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, उसमें डेसिमल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर में अगर डेसिमल यूज कर लिया, अगर 2.5, 2.3, तो फ्लॉट के कैटेगराइज में आ जाता है। ठीक है, द डेटा टाइप दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द डेटा। ठीक है, और अगर हमें नंबर यूज नहीं कर लिए, एज ए करेक्टर यूज कर लिया, एज ए वर्ड यूज कर लिए, तो वो उसको उस टाइप ऑफ डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप, डेटा और टाइप, ठीक है, जो डेटा का टाइप के बारे में बताता है उसी को डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटे होते हैं, आप नीचे यहाँ पे देखोगे। नेक्स्ट, देखो, अगर पाइथन में डेटा टाइप के बात करेंगे, तो देखो नंबरिक डेटा टाइप होता है जिसमें आपका क्या आता है, इंटीजर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और फ्लॉट आता है। ठीक है, इंटीजर यस में सर। कुछ वैल्यू होते हैं जो, मतलब अगर ज्यादा नंबर में काम करना है, ओके, लगभग अगर हम लोग यूज करेंगे तो इंटीजर यूज करेंगे। बट अगर अगर एज ए अगर इफ एनीवन वांट टू मेक एनी सॉफ्टवेयर and he want to store large number of data, okay, that time you have to use the complex number। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कम नंबर स्टोर कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉट में डेसिमल नंबर डेटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही हमारा डिक्शनरी होता है, बुलियन होता है, बुलियन मतलब जीरो और वन। ओके, या तो इसमें जीरो और नहीं तो वन स्टोर होता है। ठीक है, जिसको बुलियन डेटा टाइप बोलते हैं। सेट भी होता है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, जैसे स्ट्रिंग, ओके, लीस्ट और टॉपल। एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेटा टाइप। फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला हम इंटीजर पढ़ेंगे। व्हाट इज द इंटीजर इन पाइथन? इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट पॉजिटिव और एंड निगेटिव। ओके, या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। पॉसिबल होल नंबर एंड इज डोनेट एज इंट। इंट उसको डोनेट कैसे किया जाता है? आई एन टी, उसका शॉर्ट नेम प्रोग्राम में लिखा जाता है आई एन टी। जैसे अगर हमें इट डज डज नॉट कंटेन द डेसिमल वैल्यू, आपको इंटीजर में अगर डेसिमल वैल्यू लगाओगे तो वो क्या एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका जब भी इंटीजर डेटा टाइप का बात करोगे तो वो डेसिमल नंबर, डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ऑलवेज वो होता है तो निगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा, नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एज वेल एज जीरो, जीरो भी वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, द रेंज ऑफ इन इंटीजर कैन बी, ये देखो पूरा रेंज दिया है, इतना ही नंबर आप एक इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। माइनस से इतना इसको काउंट कर लो, और ये इतना, इससे ज्यादा अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको अभी बताए थे, वो आपको डेटा टाइप यूज करना होगा। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? अब बोलो जी, कौन पूछा था? अभी डाउट है? खुशबू, जो जिसका आईडी था, डाउट है जी? नो सर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम बता दे रहे हैं आपको। 1 मिनट। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। हम पाइथन ओपन करते हैं, पाइथन में आइडल ओपन किए। ठीक है, आइडल ओपन किए। यहाँ पे अगर हमें, अगर पाइथन का बात करेंगे, पाइथन में हमें ज्यादातर आपको डेटा को बताना नहीं पड़ता है। पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है।
है ना, जिसको बताना नहीं पड़ता है कि इंटीजर है या फ्लोट है, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है। जैसे हम a इजकल टू 5 लिखे, है ना, b इजकल टू 5, b इजकल टू 4 लिखे, और यहाँ पे आपको कल भी बताए थे ए, यहाँ पे अब यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी कर दिए, बी कर दोगे, तो जैसे इंटर करोगे देखो 9 आ गया। यहाँ पे बताना पड़ा इसको कि इंटीजर एक वैल्यू है, नहीं बताना पड़ा। बट अगर आप ऐसे जावा का बात करोगे, जैसे जावा, जावा को आपको दिखाते हैं, 1 मिनट इसके लिए। अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें, यहाँ पे आपको जावा दिखाते हैं, जिसमें आपको बताना पड़ता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि दिस इज इंटीजर, और ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, इस पे भी आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, ओपन फोल्डर। जैसे यहाँ पे एक फोल्डर लाए, यहाँ पे देखिए, अरे क्लास, यहाँ पे देखिए, ये जो है इतना में यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखो डिफाइन करना पड़ा, INT लिखना पड़ा। ठीक है, आपको सिंपल इसका प्रोग्राम अगर दिखाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे प्रैक्टिस ओपन फोल्डर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एज निकालना था, ये एज निकालना था, एक पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है। यू आर एडल्ट और यू आर टीनेजर और यू आर चाइल्ड नाउ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखो डिफाइन किया गया है इंट। ठीक है, INT इंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड भी यूज किया गया है, बट इन पाइथन अगर पाइथन पढ़ोगे ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिखने के, यहाँ पे स्कैनर यूज होता है ना, जब इनपुट कराना हो तो वहाँ पे इनपुट यूज करते हैं, बहुत सिंपल। यही अगर छोटा सा प्रोग्राम अगर पाइथन में लिखना हो तो इतना ही आपको लगभग लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको पाइथन में डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। समझ में आया? आई थिंक इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर इसी को, अगर हमें यहाँ पे ए इजकल टू 5 पॉइंट, अगर इसका टाइप चेक करना है, प्रिंट, PRINT प्रिंट, ओके, टाइप ए, देखो यहाँ पे बता दिया ना इंटीजर है, यहाँ पे बताया टाइप ए से जैसे चेक किए ये बताया इंटीजर है ना। अगर इसी में अगर हम ए इजकल टू 5.5 स्टोर किए, तो देखो जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें 5.5 स्टोर हो गया, आवाज आ रही है कि मेरा? हाँ, और इसका जैसे हम टाइप चेक करेंगे, टाइप ए, इसको लिख के जैसे इंटर ला रहे हैं, यहाँ पे देखो फ्लोट आ गया। गॉट इट? समझ में आया? गुड मॉर्निंग सर। समझ में आया जी? यस या नो बोल तो लिखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लोट।
These data type is used to represent the number that contain the decimal point. जिसमें decimal point contain होगा उसको आप float data type समझोगे. These can be written using, आप e भी लिख सकते हो या डबल कैपिटल ई से आपको रिप्रेजेंट करना होगा अगर पाइथन में. ठीक है. टू रिप्रेजेंट पावर 10, द रेंज ऑफ द, इसका रेंज यहाँ पे दिया है, इतना ही रेंज होते हैं इसका. ओके. और एक्स इजकल टू 5 पॉइंट, यहाँ यहाँ लिखा है देखो, एक्स इजकल टू 5.23, वाई इजकल टू 46.9. तो आपको पॉइंट में होगा. डायरेक्ट आप पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हो, मगर पॉइंट जब भी डालोगे, जैसे अगर हम ए इजकल टू देखो, यहाँ पे अगर लिख दिए, 1 मिनट, आपको पाइथन वाला चेक करते हैं. यहाँ पे अगर हम लिखें ए इजकल टू 5.5 ई. 1 मिनट, 1 मिनट. इसको चलो आगे देखते हैं, उसमें कुछ एरर दिखा रहा है. नेक्स्ट, complex this data type is used to represent the number that contain real part and in imaginary part. It is written in, ऐसे लिखा जाता है आपको a, 1 मिनट, रिटेन इन एक्स प्लस वाई जेड. ओके, इस तरह लिखा जाता है आपको. ओके, ये आपको आगे पढ़ेंगे, अभी इंटीजर पे ही हम प्रोग्राम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग आपको बताए थे, स्ट्रिंग जब भी आप लिखे हुए, ठीक है, वो आपको या तो सिंगल कोटेड कॉमा में लिख सकते हो या तो डबल कोटेड कॉमा में लिख सकते हो. जैसे एक्स इजकल टू पाइथन लिखा गया था, यहाँ सिंगल कोटेड कॉमा लिखा गया है. ठीक है, तो ये पाइथन क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया. ठीक है, जो स्ट्रिंग सेम टू सेम एज ए प्रिंट हो जाता है हमारा आउटपुट पे. ठीक है, आपको पिछले प्रीवियस क्लास में ऐसा बताया था, यूनिटी इंटरनेशनल इसको लिखा है. तो यहाँ पे डबल कोटेड कॉमा भी लिख सकते हो, सिंगल कोटेड कॉमा भी लिख सकते हो. ठीक है, तो स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हो एज ए दिखाने के लिए. नेक्स्ट है, आप यहाँ पे भी पाइथन में भी लिख लो. यहाँ पे अ, अगर यहाँ पे लिखें ए इजकल टू, ओके, और यहाँ पे लिख दिए पाइथन, ओके, या यूनिटी इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्कूल अगर लिख दिए, और जैसे इंटर किया है या इसका टाइप चेंज कर लिए, टाइप ए लिख दिए, और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बता दिया, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, इसका टाइप बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट. लीस्ट डेटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट ए heterogeneous collection of data elements separated by the comma, inverted, sorry, enclosed with the square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज होता है और सेपरेट किया जाता है कोमा से. आपको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, you can also create a list with same different data element. डिफरेंट डेटा एलिमेंट इसमें डाल सकते हो. जैसे आप एरे पढ़ोगे, एरे तो ऐसे भी आप पढ़ोगे नहीं, जैसे आप कोई भी मास्टर या बैचलर करेगा तो उसमें एरे पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो एरे में सिमिलर डेटा टाइप आपको स्टोर करना होता है, बट लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो. लाइक आप यहाँ पे देखो डिफरेंट डेटा टाइप कैसे, जैसे यहाँ पे एप्पल स्टोर किया गया है, बनाना, तो ये तो स्ट्रिंग है, 5 2 डाला गया है तो इंटीजर है. तो डिफरेंट डेटा एलिमेंट भी आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो. आपको लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और डेटा को विथ कोमा आपको सेपरेट करना है. ठीक है, जैसे आपको इसका एग्जांपल देखें. ओके, यहाँ पे अगर हम लिखें, 1 मिनट, अगर यहाँ पे लिखें LIST लिस्ट 1 इजकल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, ओके, और 4, जैसे इसको इसको लिखें और जैसे यहाँ पे इंटर किए, ठीक है, और इसका टाइप चेक कर लिए, टाइप LIST लिस्ट 1. ठीक है,
जैसे इंटर किए हैं यहाँ पे देखो टाइप बता दिया लिस्ट, ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप है। समझ में आया? समझ में आया जी? यस सर। नेक्स्ट है अ, हमारा टॉपल्स। टॉपल्स एक सिमिलर होता है, लिस्ट के तरह सिमिलर होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, द वैल्यू कैन बी चेंज्ड, बट इन टपल इट इज इम्यूटेबल। यहाँ पे देखो लिखा है इम्यूटेबल, इट इज द इम्यूटेबल मतलब द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, एक बार जो असाइन कर दिए वही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, दिस डेटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ आर द ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ टपल सेपरेटेड बाई इन क्लोज प्रेंथेसिस। देखो ये सब प्रेंथेसिस जो हमारा ये वाला स्मॉल ब्रैकेट के साइन को ही प्रेंथेसिस बोलते हैं, इससे आपको करना होता है इनक्लोज, और आप कोमा से सेपरेट कर सकते हो। इसमें भी आप डिफरेंट तरह के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चेक कर ले। अ, यहाँ पे जैसे लिखेंगे ए, यहाँ पे, यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल लिख इस क्या बना रहे थे, टप्पल, TUP लिख दे रहे हैं। टप्पल 1 इजकल टू, प्रेंथेसिस दे दिए 1 2 3 और 4 दे दिए। ओके, कोमा के साथ आप सेपरेट करना है। उसके बाद जैसे इंटर करोगे और टाइप चेंज कर लेना है, टाइप इस टाइप TUP1। ओके, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखो टप्पल आ गया, तो वो पहले लिस्ट दिखा रहा था, अब यहाँ पे टप्पल आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, आई थिंक दिस एंड, यहाँ तक समझ में आया आपको? इस डेटा टाइप का हम यूज करके, ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके।